5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं तमिलनाडु के पलक्कड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मंच पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में उनका भाषण शुरू होगा। जो भाषण होगा तो प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के पलक्कड़ में। प्रतीക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Friends, over the last few years, the politics of Kerala is seeing a major shift. This shift is being driven by the aspiration of the youth, especially the first-time voter in the state. The first-time voter of Kerala is disappointed with LDF and UDF. For many years, the worst-kept secret of Kerala politics was the friendly agreement of UDF and LDF. Now, the first time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots, 5 years, the other loots. People are seeing how UDF and LDF misled people. In West Bengal, Congress and left are one. Congress and left were partners in UPA 1 in Delhi. The left continue to give issue-based support to UPA 2, but here in Kerala, during the election, they put allegations, and after coming to power, they never act on it. Their behind the scene games are now exposed. About UDF and LDF, the youth of Kerala is saying different name, working same, but have their marked areas for making money. UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF, it can be said, Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വലിയൊരു മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാറ്റം ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ യുവാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അവർ നിരാശരാണ്. ഈ UDFന്റെയും LDFന്റെയും കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമാണ് LDFും UDFും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം. ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഒത്തുകളി എന്താണ്? എന്താണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം? 5 വർഷം ഒരു കൂട്ടർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു, അടുത്ത 5 വർഷം വേറൊരു കൂട്ടർ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. എങ്ങനെ LDFും UDFും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. UPA 1ാം സർക്കാരിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഘടകകക്ഷികളായിരുന്നു. 2ാം UPAയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഇടതുപക്ഷം പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത പിന്തുണ നൽകി. പക്ഷേ ഇവിടെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവർ പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ അണിയറക്കു പിറകിൽ നടക്കുന്ന ഈ നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ UDF-നെയും LDF-നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരേ പേരുകൾ, വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ, ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. അവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. UDF-കാർ केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे। आज उनकी 3 रैलियां हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी रैली है और पुदुचेरी में भी रैली है। लेकिन तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल से निकल के सीधे आप बंगाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है। जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में आमने सामने। आज आखिरी प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा दूसरे दौर का, और इसलिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में झोंक रखी है। खासतौर पर नंदीग्राम आज बंगाल की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है, बंगाल की चुनावी लड़ाई का केंद्र है, क्योंकि तमाम दिग्गज आज नंदीग्राम में ही हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हैं, हमारे संवाददाता भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार खत्म होने वाला है। खत्म होने से पहले नंदीग्राम में ज़बरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। आज नंदीग्राम के रण में गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो यहां पर शुरू होगा। ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। नंदीग्राम में जब ममता की गाड़ी गुजर रही थी तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि ममता की गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई। आपको बता दें, जय श्री राम का नारा लगाने के बाद ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सबसे पहले 2017 में सामने आई थी। उसके बाद से लगातार यहां पर जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी को देखकर लगाने लगे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी पहुंची तो उनको देखकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा बुलंद किया। हमारे साथ आदर्श कुमार सिंह उसी जगह से मौजूद हैं जहां पर भंगा बेरा में अब से कुछ देर बाद ममता बनर्जी का रोड शो शुरू होना है। आदर्श, एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी को देखते ही बुलंद कर दिया। बिल्कुल विकास, और ये पहली घटना नहीं है। जैसा कि आपने पहले बताया है कि इससे पहले कई बार ममता बनर्जी को ये देखना पड़ा है, समझना पड़ा है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है। ममता बनर्जी अब से कुछ देर में इस जगह पर आने वाली हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस रास्ते से वो आ रही हैं उस रास्ते में ना सिर्फ टीएमसी के बल्कि उससे ज़्यादा पोस्टर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के, अमित शाह के लगे हुए हैं। मतलब एक बार अगर ये कहा जाए कि देखने से कि ये जिस रोड पर रैली होनी है, रोड शो होना है, उसमें टीएमसी का रोड शो नहीं बल्कि बीजेपी का है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बैनर पोस्टर लगे हैं। कार्यकर्ता तमाम उनके खड़े हैं। 1-2 कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत भी थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए हमें डर वर नहीं लगता। अब ममता बनर्जी भले यहाँ पर रोड शो कर रही हैं, इसलिए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम जय श्री राम के साथ हैं। और हो सकता है कि वही ममता बनर्जी जब अपने हेलीपैड से रोड शो की तरफ आ रही हों या उसके लिए हेलीपैड की तरफ जा रही हों तो उसी दौरान ये घटना हुई है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ना सिर्फ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है अपने तमाम टॉप लीडर्स को यहाँ पर उतार कर, बल्कि टीएमसी के जो मुखिया हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जैसा कि पहले भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आज के दिन ऐसी घटना हो सकती है, टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी, वो हुआ भी। और हो सकता है कि अभी जो रोड शो शुरू होगा, क्योंकि ममता बनर्जी की रोड शो का समय जो था वो 11 बजे था, अब उस तरह के रंग नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसा अमित शाह के रोड शो के समय दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें दिखाइए जरा आसपास रोड शो की क्या तैयारियां हैं ममता बनर्जी की। बिल्कुल विकास, सबसे पहले देखेंगे ग्रीन कारपेट बिछाई गई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो कुछ संख्या में मौजूद हैं। और जो उत्साह दूसरे खेमे में जो बीजेपी की तरफ से दिख रहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। उनकी व्हीलचेयर
आइकॉनिक व्हीलचेयर जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। अब से कुछ देर में ही वो यहाँ पर आएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो पुलिस कर्मियों की, उनके कुछ एक खास कार्यकर्ताओं की और मीडिया कर्मियों की, जो हम लोग यहाँ पर जिसे कवर करने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके की तस्वीरें, जोश, उत्साह बीजेपी की रैलियों में, कैंपेन में और उनके रोड शो में दिख रहा है, वो तस्वीर यहाँ नहीं है। और विकास, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इलाका है ये बहुत इंटीरियर है, बहुत गाँव का इलाका है। ऐसे में आप समझिए कि एक सिटिंग सीएम जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हो और ऐसी छोटी छोटी रोड शो, छोटे छोटे सभाएं अगर कर रहा हो तो किस तरीके के प्रेशर। जी आदर्श, आप बने रहिए, ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्ट हम देखते रहेंगे। आप जो भी तस्वीर भेजेंगे वो हम आपको भेजते रहेंगे। तो ममता बनर्जी और अमित शाह के रोड शो में जो एक ज़मीनी अंतर देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी का कार्यक्रम सरकारी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि अमित शाह का रोड शो की तैयारियों में ज़्यादा रंग दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल सीधे जुड़ गई हैं नंदीग्राम से। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, आपके आसपास क्या तस्वीरें हैं? सिर्फ थोड़ी देर पहले आप हमसे जुड़ी थी तो हमने देखा था कि आपके आसपास तमाम आदिवासी थे जो नृत्य कर रहे थे और अमित शाह का इंतजार में तमाम कार्यकर्ता वहां कतारबद्ध थे। बिल्कुल, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है, सिक्योरिटी की तैयारियां हो रही है। देखिए, आपको दिखा दें, एक साइड सड़क पर महिलाओं का तांता लगा हुआ है। ये सारी महिलाएं एक जैसी साड़ियां पहनकर लगातार कई दूर, कई किलोमीटर तक चल रही है। ये वो रास्ता है जहां से भी थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 12 बजे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा और उसके बाद वो यहाँ से इस गाड़ी से अपना रोड शो शुरू करेंगे। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का जमावड़ा है, समर्थकों का जमावड़ा है और तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इलाके में जो जगह है, जो सड़क है वो छोटी है। रास्ते में इस तरह के खाल है, खाल माने छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं, रिविलेट्स कहते हैं जिनको, वो है छोटे छोटे ब्रिज है। लेकिन इस छोटे इलाके से एक बड़ी विजय की तैयारी कर रही है बीजेपी। यही वजह है कि पार्टी ये जानती है कि इलाका छोटा हो, हर वोट की कीमत क्या है। एक और ममता बनर्जी, दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह, एक और शुभेंदु अधिकारी होंगे। इसी पर जो उम्मीदवार हैं आज के, ये रथ तैयार है, लिखा हुआ है ए बार आसल परिवर्तन, ए बार बीजेपी। गृह मंत्री की सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, लोगों में उत्साह इतना ज्यादा है। आप खुद देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल को कितनी तैयारी करनी पड़ रही है सिर्फ इस जगह को, एक एक गाड़ी को निकालने के लिए। इस पूरे रोड शो से बड़ी मेहनत लग रही है क्योंकि सड़कों का जो एवरेज जो विड्थ है वो चौड़ाई बहुत कम है और संख्या लोगों की बढ़ती ही चली जा रही है। आदर्श के पास भी चलते हैं। आदर्श उस जगह पर मौजूद हैं भंगाबेरा में जहां से ममता बनर्जी का रोड शो शुरू होना है। क्या तस्वीरें हैं आदर्श आपके पास? जी विकास, देखिए, भंगाबेड़ा वो जगह है जहां पर 2007 में आंदोलन जो हुआ था उसमें कई लोग शहीद हुए थे और ममता बनर्जी जब आती हैं गाड़ी से अपनी तो सीधे वहां पर ये पहले फूल से वो उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं और सीधे उतरने के बाद व्हीलचेयर से। और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी साफ तौर पर आपको देखेंगी व्हीलचेयर पर वो मौजूद हैं और यहाँ से वो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो करेंगे। भाई साहब, बदतमीजी मत करिए, आप ही के लिए आए हुए हैं, आप ही के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए, इनके ममता बनर्जी के जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं वो लगातार मीडिया कर्मियों को पीछे कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी रोड शो के लिए निकल पड़ी हैं और ये दिलचस्प तस्वीर है विकास, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने अपने नामांकन के दिन मंदिर में दर्शन करने के बाद शुरुआत की थी अपने चुनाव प्रचार की तमाम चीज़ों की। वहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी तमाम अपने समर्थकों के साथ रोड शो कर रही हैं और ये यहाँ पर सबसे पहली की तस्वीर देखने को मिली। भाई साहब, मत करिए, आप लोग आराम से करिए, गिर जाओगे। आप धक्का मार गिरा देंगे क्या? नंदीग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा कर्मी मीडिया कर्मियों के साथ थोड़ी बदतमीजी भी कर रहे हैं। इस समय आदर्श हमारे साथ हैं उस ग्राउंड जीरो से जहां सर ममता बनर्जी का बंगाबेरा में रोड शो शुरू हो रहा है। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और रास्ते में वो मंदिर भी होगा जहां पर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी की। लगातार हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के आखिरी दौर का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इसके लिए तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दीदी नंदीग्राम में रोड शो कर रही हैं, वहीं अमित शाह आपसे कुछ देर में नंदीग्राम में रोड शो शुरू करने वाले हैं।
दीदी ममता बनर्जी इस समय भंगाबेरा में रोड शो शुरू कर चुकी हैं और आपको बता दें अमित शाह का रोड शो कहां से होके गुजरेगा। 12 बजे नंदीग्राम के हॉस्पिटल मोड़ से रोड शो शुरू होगा, 1:35 पर डेबरा पहुंचेगा और उसके बाद 3:05 पर पंसकुरा पश्चिम में और 4 बजे डायमंड हार्बर में उनकी जनसभा होगी। तो अमित शाह के ये 3 रोड शो हैं और एक जनसभा है, जबकि ममता बनर्जी नंदीग्राम में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।